So guys, today's topic is the Egyptian civilization. So let's begin. So first we will learn about location and origins. The Egyptian civilization emerged along the banks of the river Nile in about 3150 BCE. Herodotus, the ancient Greek historian, describes Egypt as the gift of Nile. The Nile River rises in the Central Africa, flows northwards and drain into the Mediterranean Sea. तो इस पैरा का मतलब था कि जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है वो रिवर नाइल के किनारे में है और वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वो 3150 BCE तक से स्टार्ट थी। और हेरोडोटस जो एक एंशियंट बहुत पुराना एक हिस्टोरियन था, वो बताया था कि इजिप्ट जो है वो गिफ्ट ऑफ नाइल है, यानी नाइल का वो एक तोहफ़ा है। और जो नाइल रिवर है वो सेंट्रल अफ्रीका में है, जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है और फिर मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है। एवरी ईयर द नाइल वुड floats its bank and deposit fertile black soil. The resulting fertile land was used for the agriculture. As the river water got replenished by the rains every year, the Egyptian had constant access to fresh drink water and irrigation. The river was also used for transport and navigation. This enabled the Egyptians to interact with the Mediterranean lands and establish trade relationships with them. The water was full of fish and papyrus weed that provide food and help in paper making, respectively. The harvest was bountiful, supported by dense forest and cattle rearing. हर साल जब बाढ़ आती थी नील रिवर की वजह से, तो उसकी जो बगल की लैंड थी तो वो फर्टाइल हो जाती थी और वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो जाती थी। वहाँ ब्लैक सॉइल आ जाता था, तो जो बारिश होती थी उसकी वजह से वहाँ पे पीने का पानी भी साफ़ था और इरिगेशन के लिए भी पानी होता था। और जो रिवर था वो सामान ले जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए, ये सब चीज़ें के लिए यूज़ किया जाता था। और ये जो थी वो मेडिटेरियन लैंड्स के साथ मतलब जो इजिप्ट के लोग थे वो मेडिटेरियन के लोग, मेडिटेरियन लैंड्स जो था उनके लोगों से भी उनका अच्छा रिलेशनशिप बनने लगा। और जो वहाँ का पानी था वो पूरा फिश और पेपरस वीड जो होता है उन सब से भरा था। तो फिश से उन लोगों को फूड मिल जाता था और फिर पेपरस वीड से उन लोग पेपर बना सकते थे। और वहाँ की जो हार्वेस्ट थी, मतलब वहाँ जो खेती करते थे वो लोग, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। वहाँ पे कैटल यानी कि गाय को भी रखा जाता था। Ancient Egypt was often understood as two distinct lands: Kemet, the black land, referring to the fertile land and around the river, and the Deseret, the red land, referring to the desert on the other side of Kemet. The desert surrounding the region acted as natural barriers against outright infiltration. This allowed the Egyptian society and culture to develop almost an isolation. जो एंशियंट इजिप्ट था वो दो लैंड्स में डिवाइडेड था। पहला केमेट जो ब्लैक लैंड था वो बहुत फर्टाइल था, वो रिवर के किनारे था। एक डेजर्ट वो रेड लैंड था, वो डेजर्ट पूरा डेजर्ट एरिया था और वो केमेट के दूसरे साइड में था। जो डेजर्ट एरिया था वो एक जैसे एक बैरियर टाइप का था, जैसे कोई दुश्मनों के लिए। और वो ये सब चीज़ों के बाद जो इजिप्टियन सोसाइटी थी उसकी कल्चर और ये सब डेवलप हो गए थे बहुत अच्छे डेवलप मैनर में। The history of ancient Egypt can be divided into three phases: Old Kingdom about 3000 to 2200 BCE, Middle Kingdom about 2100 to 1800 BCE, New Kingdom about 1500 to 1000 BCE. तो जो एंशियंट इजिप्ट था वो तीन फेजेस में डिवाइडेड था: ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम और न्यू किंगडम। इन तीनों के यहाँ पे एजेस दिए हैं जो आप देख सकते हैं। Early Egyptians settled were divided into two parts: Upper Egypt and Lower Egypt. Despite having much in common, especially in terms of culture and religious belief, the two lands were at war with each other. King Narmer unified the two lands into
3100 BCE when he conquered Lower Egypt and facilitated the emergence of an unified Egypt. The rulers of Egypt were referred to as pharaohs. The pharaonic rule, which began with King Narmer, ended with the end of Cleopatra, the last pharaoh, in 30 BCE. तो जो अर्ली इजिप्टन थे वो दो टाइप में डिवाइडेड थे, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट, और दोनों का जो कॉमन था, दोनों का सब सेम ही था, कल्चर, रिलीजियस सब सेम था। दोनों में जब लड़ाई हुई अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट में, तो किंग नरमर जो दोनों लैंड्स के राजा थे 3100 BCE में, वो लोअर इजिप्ट को के साइड थे, और जो इजिप्ट के जो रूलर्स थे उनको फ़ाराओस कहा जाता था। फ़ाराओ रूल जो था वो शुरू हुआ था किंग नरमर के साथ और ख़त्म हुआ था क्लेओपत्रा, आखिरी फ़ाराओ थे जो थे 30 BCE में। फ़ाराओ was given the statue of God on earth. The pharaoh also assumed the position of the supreme priest of every temple. They built their personal treasury by accepting gifts and valuable items from all area under their control. फ़ाराओ थे, उनको मतलब भगवान माना जाता था अर्थ का। जो फ़ाराओ थे वो जैसे कि हर टेम्पल का सबसे बड़े पंडित माने जाते थे। वो अपना खजाना जो बनाए थे, उनके पास जितना खजाना था वो बहुत वैल्यूबल गिफ्ट्स और ये सब जो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे गिफ्ट्स थे, उन एरिया से जो लोग उनको देते थे, जो एरिया उनके कंट्रोल में रहता था, उन एरिया से वो सब ये सब इकट्ठा किए थे। द सुप्रीम पोजीशन ऑफ द pharaohs इज रिफ्लेक्टेड इन द मॉसिव tombs in the shape of pyramids built for them. The ancient Egyptians believed in afterlife. They believed that if the pharaoh's body was preserved and mummied after death, the pharaoh would live forever. The tombs were designed to protect the buried pharaoh's body and his belongings. तो जो वहाँ के फ़ाराओस थे यानी कि किंग्स थे, उनके लिए एक बहुत, वो लोग बहुत महान थे, तो उनके लिए एक पिरामिड बनाया जाता था, मैसिव टॉम, बहुत बड़ा सा पिरामिड। और जो इजिप्ट के लोग थे वो सोचते थे कि मरने के बाद भी लाइफ हो सकती है, तो इसीलिए वो लोग जो फ़ाराओस थे उनकी बॉडी को मम्मीफाइड कर देते थे, यानी जो मम्मीज़ बनाते हैं उनके, और सोचते थे कि ये जो मम्मी होगी वो हमारे मतलब यानी फ़ाराओ थे ये लोग, तो ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और ये जो पिरामिड बनाया जाता था वो उनकी बॉडी को मतलब उनकी जो डेड बॉडी थी उसको दबाने के लिए बनाया जाता था। Did you know the ancient Egyptians did not refer to their kings as pharaoh? The term derived from the Greek language and was used by the Greek and Hebrews to refer to the king of Egypt. जो इजिप्ट के लोग थे वो लोग किंग, जो वहाँ के राजा थे, उनको फ़ाराओ नहीं कहते थे। ये जो वर्ड आया वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जो ग्रीक्स यूज़ करते थे और हर्ब्यूज़ यूज़ करते थे। वो किंग, इजिप्ट के किंग को, मतलब इजिप्ट के किंग का नाम लेने के लिए वो लोग ग्रीक्स और हर्ब्यूज़ ये दोनों ये वर्ड यूज़ करते थे। Main features of Egyptian civilization. Town planning. Not much is known about the town planning skills of Egyptian civilization. A few cities like Memphis in the Lower Egypt and Thebes in the Upper Egypt grew naturally, while some Egyptian cities were planned. इजिप्ट के लोगों की टाउन प्लानिंग के बारे में इतना नहीं जाना गया है। जो कुछ फ्यू सिटीज़ थे, मेम्फिस जो लोअर इजिप्ट में था और थेब्स जो अपर इजिप्ट में था, ये दोनों अपने आप ऐसी टाउन प्लानिंग हो गया था इन लोगों का, और कुछ सिटीज़ को ये लोग प्लान करके किए थे। The planning of the cities and towns was based on the proximity to the Nile and need to protect them from flooding. तो जो टाउन प्लानिंग था सिटीज़ और टाउन्स का, वो सब नील रिवर को देखते हुए बनाया जाता था, उसको बाढ़ से बचाने और ये सब के लिए। The evacuation of several towns show that the main streets ran parallel through the center of the towns, while the narrow streets intersected them as right angle. The houses were constructed using sun-baked bricks and had flat roofs. Most houses had 2 to 3 rooms, courtyard and kitchen area. The royal homes were
fenced by high walls and moats for security reasons. Public buildings were also surrounded by high walls. और जो अभी सब खेती हुई उसमें पता चला है कि जो मतलब टाउन्स थे उनके बीच में वो लोग रोड बनाते थे और जो रास्ते थे वो सब बहुत अच्छे से मतलब एकदम कैलकुलेट कर कर के बनाए जाते थे और जो घर होते थे उस टाइम वो सन बेक्ड ब्रिक्स से बनाए जाते थे और उनकी छत भी पूरी एकदम फ्लैट होती थी छत। मोस्ट हाउस और अधिकतर घरों में 2 से 3 रूम होते थे और बीच में एक आंगन होता था और किचन के लिए एरिया होता था। और जो बहुत रॉयल हाउसेस होते थे वो बड़े बड़े दीवारों से सराउंडेड थे जैसे सिक्योरिटी के लिए। और जो वर ऑल्सो सराउंड और जो पब्लिक मतलब ऐसी जो घर और थे जहाँ पे पूरी पब्लिक रहती थी वो भी बड़े बड़े दीवारों से सराउंडेड थे। Agriculture. The Egyptian built several agricultural structures and monuments along the Nile River. The pyramids and temples are great examples of the agricultural brilliance. All the pyramids and temples, royal building, high walls and houses were built using sun-baked mud bricks and stones, mainly limestone, sandstone and granite. Other structures such as dam, canals, dikes and reservoirs were built to utilize the Nile water for agriculture. जो इजिप्ट के लोग थे वो बहुत सारा अच्छा मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। नील रिवर के किनारे भी बनाए थे, जैसे वो लोग पिरामिड बनाए थे, टेम्पल्स बनाए थे और ये टेम्पल्स और पिरामिड्स उनकी अच्छी एग्रीकल्चर कला की एग्जांपल्स हैं। और जो पिरामिड्स, टेम्पल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े वॉल्स, हाउसेस, ये सब जो मड ब्रिक्स, सन बेक्ड ब्रिक्स और ग्रैंड स्टोन से बनाए जाते थे और मेनली लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट इन सब में यूज़ किए जाते थे। और बाकी स्ट्रक्चर्स यानी कि डैम्स, कैनाल्स, डाइक्स, रिजर्वियर्स, ये सब नाइल के पानी को एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए बनाया जाता था। The Great Pyramid of Giza is listed among the 7 wonders of ancient world. The pyramid were built for the pharaoh Khufu. The other monuments which display the agriculture finance of Egyptian aspects. The mythological creature with a human head and lion's body. जो पिरामिड जो ग्रेट पिरामिड गीज़ा है वो 7 वंडर्स पुराने 7 वंडर्स में भी आता है। वो जो पिरामिड है वो एक फ़ाराओ खुफू के लिए बनाया गया था और एक और भी कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें से एक है स्फिंक्स। इजिप्ट में एक स्फिंक्स नाम का है जो एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसके पास आदमी जैसा सर है और लॉयन की बॉडी है पूरी। Social structure. The ancient Egyptian society was divided into 3 classes, upper, middle and lower. Each class had its own set of duties and rights. Upper class, royal family, prized government officials, other. Middle class, merchant, manufacturers, crafts, etc. Lower class, farmers, slaves, peasants, etc. एंशियंट इजिप्ट जो था वो उसकी सोसाइटी 3 टाइप में डिवाइडेड थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। और हर एक क्लास में उसकी ड्यूटीज़ और राइट्स पे बेस्ड थी। अपर क्लास में रॉयल फैमिली रहते थे यानी कि राजा और जो पंडित लोग रहते और गवर्नमेंट्स रहती थी। मिडिल क्लास में मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, क्राफ्टमैन्स ये सब रहते थे। लोअर क्लास में फार्मर्स और जो नौकर ये रहते हैं वो सब रहते थे। Family life. Ancient Egyptians greatly valued their family life. The Egyptian family consists of husband, wife and children. Male members were considered the head of the family. They had to work for a living while women took care of homes and children. Women treated with respect and were equal to men in the eyes of law, but they were expected to obey their husbands and father. एंशियंट इजिप्ट में उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे वो लोग और एक फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ और एक चिल्ड्रन थे, मतलब चिल्ड्रंस रहते थे और जो वहाँ मेल मेंबर थे उस फैमिली के उनको हेड माना जाता था। और वो लोग जो वो थे मेल मेंबर्स वो लोग जाते थे अपने घर के लिए काम करने के लिए और पैसा कमा के लाते थे। और जो वुमेन्स होती थी वो बच्चे और घर का केयर करती थी। वुमेन्स जो थी उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पेक्ट से ट्रीटेड की जाती थी और मैन के इक्वल थी वो लोग।
इन लॉ की अगर हम लोग उनको देखें एक तरीके से उस टाइम, तो वो मैन के इक्वल थी। और वो लोग और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने हस्बैंड्स और फादर्स को इज्जत देना उनको एक्सपेक्ट किया जाता था। बॉय लर्न द क्राफ्ट एंड ट्रेड फ्रॉम देयर while girl learned houses from their mothers. Wealthy families sent boys to school at around the age of 7. Education of girls were rare. The upper class families lived luxurious life and enjoyed recreational activities such as swimming, fishing, boating in the Nile River. बॉय जो लड़के थे वो क्राफ्ट और ये सब ट्रेड ये सब अपने फादर से सीखते थे, और मदर से गर्ल जो थी वो अपनी मदर से हाउस होल्ड वर्क सीखती थी। और जो बहुत अमीर होते थे उन वहाँ पे जो अमीर फैमिलीज़ थी वहाँ पे लड़के को 7 इयर्स की एज पे स्कूल भेजा जाता था, और गर्ल्स की जो एजुकेशन थी वो बहुत रेयर थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, कुछ ही लड़कियां स्कूल जाती थी। दी अपर क्लास फैमिली जो अपर क्लास फैमिली थी वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जीती थी। वो बहुत सारा एक्टिविटीज़ करती थी, स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग इन नाइल रिवर में। Occupation. The occupation of ancient Egyptians included agriculture, animal husbandry, art and craft. However, the agriculture remained their core occupation. जो वहाँ का इजिप्ट में जो काम सब ऑक्यूपेशन था उसमें एग्रीकल्चर, एनिमल को पालना, आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब आता था, और वहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे मेन ऑक्यूपेशन था। Agriculture was one of the main reasons for the rise of Egyptian civilization. The fertile soil deposits abundant water supply from the Nile River and well-developed irrigation system enable the people to grow crops all year round. Their chief crops were wheat, meat, barley, dates, figs and melons. They also grew flax which was converted into linen. एग्रीकल्चर जो था उनका मेन रीज़न था इजिप्टियन सिविलाइजेशन की पूरी सब, मतलब इजिप्टियन सिविलाइजेशन का बनने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। जो फर्टाइल सॉइल जो होती थी नील रिवर की वजह से वो पीपल वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे और वहाँ पे इरिगेशंस करते थे, ताकि वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रॉप्स होते थे पूरे साल। वहाँ के क्रॉप्स जो मेन क्रॉप्स उगाए जाते थे वो थे वीट, मिलेट, बार्ली, डेट्स, फिग्स एंड मेलन्स। और वो लोग वहाँ पे फ्लैक्स भी उगाते थे जो आज के दुनिया में लिनन कहा जाता है जिसे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. The Egyptian domesticated animals such as donkeys, camels, dogs, cattle, goats, and sheep for agriculture and transport purpose. Animals were reared for eggs, meat, and milk. Royal families often have dogs and cats and monkeys. Horses were used by royal families to drive chariots in war. जो वहाँ पे इजिप्ट में जो एनिमल्स को पाला जाता था उसमें से डंकी, कैमल, डॉग, कैटल, गोट्स और शेप एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे। एनिमल्स जो थे वो एग्स, मीट और मिल्क के लिए भी यूज़ किए जाते थे। रॉयल फैमिली जो थी बहुत वो डॉग्स, कैट, मंकीज़ पेट्स के तौर पे रखती थी, और हॉर्स जो थे उनको रॉयल फैमिलीज़ जो रथ होता था उसको चलाने के लिए रखते थे। Art and craft. Egyptian art and craft showed carvings of human beings, animals and nature in paintings and sculpting made of wood, stone and ceramic. The paintings were done on the stone surface of tombs, temples and palaces. The sculptors carved the statues of pharaohs using stone and wood. The paintings had natural color despite distinct feature of figure going through their daily activities. They were skilled craftsmen such as painters, sculptors, carpenters, goldsmiths and potters who toiled to meet demands of upper class families. इजिप्ट के लोग थे वो आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे थे। उन जो पेंटिंग्स उनकी और स्कल्पचर्स थे वो वुड, स्टोन और कैरामिक से बनाए जाते थे। उनकी पेंटिंग्स जो थी वो टेम्पल्स, पैलेसेस, पिरामिड्स इन सब पे बनाए जाते थे। और जो स्कल्पचर्स जो थे फ़ाराओ के जब स्टैचू बनाते थे तो वो सब उन लोग स्टोन्स और वुड से बनाते थे। और जो पेंटिंग्स में जो वो लोग नेचुरल कलर यूज़ करते थे वो सब दिखाने के लिए
कि जो कला लुप्त हो गई है, वो जैसे कि जो ख़त्म हो गई है, जो वो इजिप्ट सिविलाइजेशन अभी तो है नहीं, तो इजिप्ट सिविलाइजेशन में जो लोग काम करते थे वो चीज़ वो लोग टेम्पल्स, पिरामिड्स, इन सब के दीवारों पे बनाए थे। वो लोग स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, बहुत अच्छे पेंटर, स्कल्पचर, कार्डमैन, गोल्डस्मिथ और पॉटर्स थे, जो डिमांड्स पर थे अपर क्लास फैमिलीज़ के लिए। Trade and commerce. During pharaonic times, the Egyptians traded goods with different cities, towns, and even neighboring countries. Goods were transported through boats along the Nile. The construction of the bridge over the river eased the transportation of goods. Camel, mules, and donkeys were also used to transport goods by road. Barter system was used for trade. They traded gold, papyrus, linen, grain, and artifact in return for cedar wood, ivory, copper, gold, iron, and lapis lazuli. फ़ाराओनिक टाइम के समय जो इजिप्टियन थे वो एक सिटी से दूसरी सिटी तक ट्रेड करते थे, नेबरिंग कंट्रीज़ में ले जाते थे सामान, और वो नील रिवर के बोट पे बैठ के नील रिवर के रूट से वो लोग सामान इधर उधर ले जाते थे। और वो लोग ब्रिज भी बनाए थे रिवर के ऊपर, ताकि ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सके। और कैमल्स, म्यूल्स, डंकीज़, ये लोग रोड से सामान ले जाने पे यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम भी उस टाइम यूज़ किया जाता था। वो लोग गोल्ड, पेपरस, लिनन, ग्रेन एंड आर्टिफैक्ट, ये सब वो लोग देते थे सेडर वुड, आइवरी, कॉपर, गोल्ड, आयरन एंड लैपिस लाजुरी के बदले में। Religion and culture. The Egyptians worshipped different gods and goddesses who believed to control forces of nature. Some important gods and goddesses were the sun god Ra, the creator god Amun, and Horus, the god of dead. The pharaohs were also worshipped as god. Each god has assigned a temple, and many temples had more than one deity. Many Egyptian god and human bodies with animal head. इजिप्टियंस के जो लोग थे वो गॉड्स पे भी भरोसा करते थे। तो वो लोग जो थे, कुछ इंपॉर्टेंट गॉड और गॉडेस का नाम है यहाँ। सन गॉड यानी सूर्य देवता, जो हम लोग उनको सूर्य देवता कहते हैं, वो वहाँ पे उसको रा कहा जाता था। और क्रिएटर गॉड जो हम लोग जिनको ब्रह्मा कहते हैं, उनको ये लोग अम्यून कहते थे। और यमराज जो हम लोग के गॉड ऑफ डेड हैं, उन्हें ये लोग ऑरस कहते थे। फराउस भी वहाँ पे पूजे जाते थे। एक गॉड के लिए एक टेम्पल होता था, और बहुत सारे ऐसे भी टेम्पल्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा गॉड होते थे। और कुछ ऐसे भी गॉड्स होते थे जिनके पास ह्यूमन बॉडीज़ होती थी और एनिमल्स के सर होते थे। द पीपल ऑफ इजिप्ट स्ट्रांगली बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, सो दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ प्रिजर्विंग द बॉडी ऑफ द डेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मम्मीफिकेशन। द डेड बॉडीज़ वर इम्बेल्ड यूजिंग spices and natural oils and wrapped into an animal skin. Such dead bodies are known as mummies. जो इजिप्ट के पीपल थे वो लोग मरने के बाद भी लाइफ में बिलीव करते थे, तो वो लोग डेड बॉडी को प्रिजर्व करने का सोचने लगे। इस प्रोसेस को वो लोग मम्मीफिकेशन कहते थे। वो लोग डेड बॉडीज़ के ऊपर मसाले, नेचुरल ऑयल्स और जो एनिमल्स की खाल होती थी उससे लपेट के उस डेड बॉडीज़ को रखते थे, और उस डेड बॉडीज को ममीज़ कहा जाता था। Did you know? Mummification is the process of preserving the skin and flesh of corpse. The process can happen naturally or it can be intentionally. Anubis was the god of mummification, having a human body and head of jackal. He prepared the bodies of the dead received by Horus. Mummification जो process होता है उसमें जो dead bodies की flesh होती है उसको preserve करके रखते हैं, और प्रोसेस जो होती है वो कभी कभी अपने आप भी हो जाती है और उसको कभी कभी किया भी जाता है। और मम्मीफिकेशन के गॉड को एनुमिस कहा जाता है, जिसके पास ह्यूमन बॉडी होती है और जैकाल का सर होता है। और ये वो जो एनिमस होती है वो मानते थे वहाँ पे कि वो डेड बॉडी को प्रिपेयर कर देते हैं नेचुरली, जो कह रहे हैं ये लोग वहाँ प्रिपेयर करते थे, जो डेड बॉडीज़ ओरीज उनको देता था। Contribution to modern world. The Egyptian civilization has contributed a lot to the modern world, primary of which are in the fields of writing, science and astronomy, medicine, mathematics, paper. Egyptian civilization है वो modern world में भी बहुत अच्छा रहा है। उनके कुछ अच्छे फील्ड्स थे, यानी कि वो लोग लिखने में अच्छे थे, साइंस और एस्ट्रोनॉमी में भी अच्छे थे, मेडिसिन बनाने में भी अच्छे थे, मैथ में भी अच्छे थे और पेपर बनाने में भी अच्छे थे। राइटिंग. The ancient Egypt invented hieroglyphic
also known as scared writing because they were written by prized. एंशियंट इजिप्ट के लोग थे वो हेरोफ्लाइक राइटिंग को इन्वेंट किए थे। राइटिंग को स्केयर्ड राइटिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये जो थे पंडित लोग लिखते थे। हायरोग्लिफ involved pictographic representation of object. Each object denoted a letter of alphabet. This writing was carved on painted on the walls and pillars of temples and other monuments. Cursive hieroglyphic and hieratic were used to write records by scribes. हीरोग्लिफिक जो थी वो पिक्टोग्राफिक पिक्चर्स भी बनाते थे उस हीरोग्राफिक राइटिंग में, और हर एक पिक्चर में एक अल्फ़ाबेट का लेटर तो होता ही था। और ये राइटिंग जो थी वो ज़्यादातर वॉल्स और टेम्पल्स के पिलर्स और कुछ और अदर मॉन्यूमेंट पे बनाए जाते थे। कर्सिव हीरोग्लिफिक और हायरेटिक जो राइटिंग थी ये स्क्राइब्स जो थे वो इस्तेमाल करते थे रिकॉर्ड्स लिखने के लिए। Science and astronomy. The Egyptians were probably that the first adopted a solar calendar, a year that had 360 days and 12 months, each month consisting of 30 days. Each day was divided into 24 hours. After the end of the every year, they added 5 days to be used for celebration. इजिप्टन जो थे वो पहले थे जो सोलर कैलेंडर यूज़ करते थे। उनके एक साल में 360 दिन होते थे और 12 महीने होते थे, और हर एक महीना 30 दिन का होता था, और हर एक दिन 24 घंटे में डिवाइडेड होता था। और साल के आखिर में वो लोग 5 दिन रखते थे सेलिब्रेट करने के लिए। द एंशियंट इजिप्ट वर वेरी गुड एस्ट्रोनॉमर्स बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। दे कुड प्रेडिक्ट इवन लाइक द फ्लडिंग ऑफ द नाइल एंड लूनर एंड सोलर इक्लिप्स। और जो एंशियंट इजिप्ट के लोग थे वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छे थे। वो लोग जो थे वो स्टार्स और प्लैनेट की मूवमेंट को देख के पहचान जाते थे, कब बाढ़ आएगी, कब सोलर इक्लिप्स होगा, कब लूनर इक्लिप्स होगा, ये सब वो लोग पहचान जाते थे। Medicine. The mummification process demonstrated the Egyptians had profound knowledge of medical science. Mummies preserved thousands of years ago are still well preserved. मेडिसिन जो थी वो उसमें भी इजिप्टन बहुत अच्छे थे, और जो मम्मीफिकेशन एक प्रोसेस था उसको देखते हुए हम लोग जान सकते हैं कि इजिप्टन के पास बहुत अच्छा नॉलेज था मेडिकल साइंस का। मम्मी जो हज़ारों साल पहले बनाई गई थी वो आज भी अच्छे से वेल प्रिजर्व्ड हैं। They knew about different diseases and their cure. The priests were also doctors who used magical spells along with the natural medicines and ingredients to cure illness. The priest in charge has advanced knowledge of medical and human anatomy. वो लोग बहुत सारे डिसीज़ के बारे में जानते थे और उसको कैसे ठीक करते वो भी जानते थे। और जो पंडित लोग थे वो एक डॉक्टर भी थे। वो लोग अपना ऐसे एक जादुई मंत्र से बता सकते थे कि क्या नेचुरल मेडिसिन और नेचुरल मेडिसिन की हेल्प से भी वो लोग उस बीमारी को ठीक कर सकते थे। लोग थे वो लोग बहुत अच्छा नॉलेज था उन लोगों को मेडिसिन और ह्यूमन एनाटॉमी, इन सब का बहुत अच्छा उनको नॉलेज था। In the field of mathematics, the Egyptians developed an advanced system of mathematics where numbers were written using the base of 10. The number 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 and 1 lakh has a unique style of writing, while numbers such as 1 and 2 were depicted by simple stroke. मैथ्स के फील्ड में जो इजिप्टन थे वो भी बहुत अच्छे थे। वो लोग जानते थे कि 0 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं वो सिर्फ यूज़ किए जा सकते हैं सारे नंबर को बनाने में। और 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख ये सब को लिखने के वो लोग एक अच्छा स्टाइल था उन लोगों का लिखने का। 1 और 2 ऐसे ही वो लोग सिंपल लाइन बना के ऐसे लिख देते थे। While constructing the pyramid and other monument, calculation of areas and volumes of triangle, rectangle, circle and hemisphere were done for accuracy of shape and structure of pyramid. जब वो लोग पिरामिड और बाकी मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उसके लिए भी वो लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता था, तो उन लोग बहुत अच्छा शेप देना पड़ता था। इसीलिए वो लोग इन सब पिरामिड्स के शेप को और स्ट्रक्चर को देख के जाना जा सकता है कि वो लोग मैथ के फील्ड में भी बहुत अच्छे थे।
Paper. The Egyptian made the paper and ink. Papyrus weed found in abundance along the Nile River was used to make paper for writing. Small sheets of papyrus were proceeded and pasted through the form long sheets. Juice of plants were used to prepare ink. इजिप्ट के लोग पेपर और इंक भी बना सकते थे। जो पेपरस वीड उन लोगों को नाइल रिवर में मिलती थी उससे वो लोग पेपर बनाते थे, और जो छोटे छोटे पेपर्स होते थे उनको जोड़ के वो लोग बड़े पेपर्स बना सकते थे, और जो प्लांट्स के जूस से उससे वो लोग इंक बनाते थे लिखने के लिए। Decline of Egyptian civilization. The glory of Egyptian civilization began to decline by around 1100 BCE. The fall of pharaohs was as sudden as their rise had been spectacular. The Egyptian state faced repeated invasions from Babylonia, Assyrians, Persians. The army was not occupied enough to deal with their threats. Eventually, in 332 BC, Alexander the Great, the king of Macedon, conquered Egypt. He established the new city of Alexandria. Ptolemy, a general of Alexander, declared himself as the Pharaoh of Egypt. The Ptolemaic dynasty ruled Egypt for another 300 years. In 30 BC, the Roman Empire invaded Egypt and made it Roman's finish. तो जो ग्लोरी इजिप्ट सिविलाइजेशन जो था वो 1100 BC के आसपास गिरने लगा। जो फ़ाराओस थे वो अचानक से मरने लगे, बहुत उनका राज इतना अच्छे से नहीं चल रहा था, और वैसे ही गिरने लगे जैसे वो लोग आए थे। और इजिप्ट सिविलाइजेशन जो थी उसको बेबीलोनिया, असीरियन और पर्शियंस, ये तीनों जो थे मिल के इजिप्ट सिविलाइजेशन पर अटैक कर रहे थे, और इन तीनों की आर्मी इजिप्ट सिविलाइजेशन नहीं, इजिप्ट के जो लोग थे वो लोगों के पास इतना नहीं था कि वो तीनों स्टेट से लड़ सके। 332 BCE में अलेक्जेंडर जो ग्रेट किंग था, मैकडॉन का जो किंग था, वो इजिप्ट में आया और वहाँ पे एक नई सिटी बना दी, अलेक्जेंड्रिया। टॉलेमी जो अलेक्जेंडर का जनरल था वो अपने आप को इजिप्ट का नया फ़ाराओ घोषित कर दिया। और जो टॉलेमिक डायनेस्टी थी वो इजिप्ट को अगले 300 साल तक रूल की, और आखिरी में 30 BCE में जब रोमन एम्पायर इजिप्ट में आए तो फिर वो से रोमन प्रोविंस यानी रोमन बना दिए, यानी कि रोमन का वहाँ पे किंगडम बस गया। फिर यहाँ पे नीचे टाइमलाइन जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइमलाइन दिया है कब तक कौन सा ओल्ड किंगडम न्यू किंगडम चला, तो वो नीचे दिया है, तो आप देख सकते हैं उसको। होप यू लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलेंगे अगले टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ।